آج صبح سے ہی میری بیوی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے جب پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کی منگنی امیر گھر میں کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ شادی ہونے کے بعد بہو گھر آئے گی تو میری تھوڑی سی بھی عزت نہیں کرے گی۔ میں نے بیوی کی بات غور کر کے شادی سے پہلے بہو کی جانچ پڑتال لینی شروع کی، مگر بہو نے ہماری سوچ پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ ہمیشہ خوش رہنے والی بیوی کے چہرے پر اچانک اداسی چھا جائے تو کوئی بھی آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آج رشید صاحب کے بیٹے کی منگنی ہوئی تھی، تب سے ان کی بیوی جمیلہ ایک دم اداس نظر آ رہی تھی۔ انہیں اداس دیکھ کر رشید صاحب دل ہی دل میں پریشان ہو گئے تھے۔ جمیلہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور اپنی جیولری کو رکھ رہی تھی۔ جب رشید صاحب سے رہا نہیں گیا تو جمیلہ کو چھیڑتے ہوئے بولے، کہاں کھوئی کھوئی ہو بیگم؟ ارے نئی نئی جیولری کو دیکھ کر بھی کوئی عورت اتنی اداس ہوتی ہے کیا؟ آج تو تمہارا چہرہ خوشی سے چمکنا چاہیے۔ آج تم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی منگنی جو کی ہے، خوش ہونے کی بجائے اتنی اداس کیوں نظر آ رہی ہو؟ جمیلہ کچھ نہیں بولی اور چپ چاپ سونے کے لیے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ ان کا بیٹا احمد باہر دوستوں کے ساتھ تھا، اسے آنے میں کافی دیر ہو جانی تھی اور جمیلہ سونے کے لیے لیٹ گئی تو رشید صاحب نے پھر سے پوچھا، کیا ہوا، تھک تو نہیں گئی آپ؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، منگنی والا پروگرام اچھا رہا نا؟ آج میرا دل بہت خوش ہے۔ کتنی اچھی جوڑی ہے احمد اور ثنا کی۔ جمیلہ نے بس ہاں کہا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تو رشید نے کہا کہ اچھا چلو اب سو جا، تم شاید تھک گئی ہو۔ اتنا کہہ کر رشید نے لائٹ بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر اندھیرے میں آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور پچھلے گزرے ہوئے دنوں پر غور کرنے لگی۔ ثنا اس کے بیٹے کی ہی پسند تھی۔ آج ان کی منگنی ایک شاندار حال میں ہوئی تھی اور شادی 4 مہینے بعد تھی۔ ثنا نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور وہ بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ جمیلہ نے ثنا کو دیکھتے ہی اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیا۔ ثنا بہت ہی پیاری اور ماڈرن لڑکی تھی۔ جمیلہ اور اس کا خاندان ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جو تھا سب ٹھیک تھا۔ جب ثنا کے والدین پہلی بار اس رشتے کے بارے میں بات کرنے آئے تھے تو جمیلہ تو بہت حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر فیملی تھی اور بہت اچھے سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ خیر، بچوں کی وجہ سے اسی وقت بات پکی ہو گئی اور آج کے دن منگنی طے ہو گئی تھی۔ اسی دن بات پکی ہوتے ہی ثنا کے والدین نے رشید، جمیلہ اور احمد کے ہاتھ میں ایک ایک بھاری لفافہ پکڑایا اور رشید صاحب اور جمیلہ تو منع کرتے ہی رہ گئے تھے، لیکن ثنا کے ماں باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، منع مت کیجیے بھائی صاحب، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، سب اسی کا تو ہے، اور یہ تو بس آج خوشی میں ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، ہمارے بھی تو ارمان ہے۔ بہت منع کرنے پر بھی، انہیں منانے پر بھی کہا تھا کہ اگلے اتوار آپ ہمارا گھر بھی دیکھ لیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جانے کے بعد جب ان لوگوں نے لفافے کھولے تو وہ حیران رہ گئے۔ آج تو بات ہی پکی ہوئی ہے اور اتنی بھاری رقم؟ احمد نے کہا تھا۔ ارے ماں، بہت زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس اور ثنا ان کی اکلوتی بیٹی ہے، آپ نے مانگا تھوڑی ہے، وہ تو آپ کو زبردستی دے گئے ہیں، تو آپ کیا کر سکتی ہو؟ جمیلہ نے کہا، نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی ہے، ابھی منگنی شادی سب موقع باقی ہیں اور ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ ماں آپ نہیں جانتی، یہ لوگ بہت امیر ہیں، ان کے گھر چل کر تو دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا۔ رشید صاحب نے کہا کہ واہ بیٹا، لگتا ہے تم نے کئی چکر لگا رکھے ہیں۔ احمد بھی ہنس پڑا، ہاں پاپا، ہم سب دوست ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے تو رہتے ہیں۔ اگلے اتوار جمیلہ، رشید اور احمد ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر تھے، مالک، کوک، ڈرائیور، سب لائن سے کھڑے تھے۔ ملتان میں اس طرح کا گھر ہونا عام بات نہیں تھی۔ جمیلہ کے خاندان کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ رشید ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا، احمد بھی انجینئر تھا، لیکن جمیلہ نے محسوس کیا کہ ثنا کا خاندان ان سے بہت اونچا ہے۔ بس یہی ہونے والی بہو کی امیری کا ڈر اس کے دل میں ایسا بیٹھا جس کے بعد وہ اب تک سکون کا سانس نہیں لے پائی۔ ثنا کے گھر لنچ میں انہوں نے بہت عمدہ کھانے کھائے اور لنچ کر کے جب چائے پینے لگے تو ثنا کے والدین نے انہیں ان گنت مہنگے تحفے سے لاد دیا تھا، جیسے ان کے نوکر نے ان کی کار میں رکھ دیے تھے۔ جمیلہ نے بہت منع کیا، مگر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بہن، آج آپ پہلی بار ہمارے یہاں آئی ہیں، خالی ہاتھ کیسے جانے دیں گے آپ کو؟ رشید صاحب اور جمیلہ کا منع کرنا کوئی کام نہیں تھا۔ اب ثنا ہونے والے ساس سے ملنے آتی رہتی تھی۔ ہنس مکھ اور خوش اخلاق ثنا ایسے ہی بہو کی خواہش جمیلہ کو تھی، لیکن اتنی امیری میں یہ لڑکی شادی کے بعد یہاں رہ پائے گی یا نہیں، یہ فکر جمیلہ کو ہر پل پریشانی میں گھیرتی چلی جا رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ فنکشن بڑا تھا اور یہ فنکشن لڑکے والوں کی طرف سے ہونا تھا۔ جمیلہ تیاریوں میں بیزی ہو گئی تھی۔ منگنی میں پہننے والی ڈریس ثنا کو جمیلہ نہیں دینی تھی، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ دل ہی دل میں سب کچھ آتے ہوئے اس نے ثنا کو فون کیا، بیٹا آؤ میرے ساتھ چل کر اپنی منگنی کی ڈریس خرید لو۔ ثنا نے کہا تھا، امی میں لاہور جا رہی ہوں، وہی خالہ کے ساتھ جا کر ڈیزائر ڈریس خرید لوں گی۔ جمیلہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور وہ مایوس ہو
होकर बोली, जैसे तुम्हें ठीक लगे। वो इतना ही कह पाई थी, ठीक है बेटा ले लेना। 3 दिन बाद सना ने लाहौर से फोन किया और कहा कि अम्मी मैं बुटीक के बाहर खड़ी हूँ, मैं आपका बजट पूछना तो भूल ही गई थी। जमीला को कुछ अजीब सा लगा। वो बोली, जो पसंद है वो ले लो, बजट की क्या बात है। अंधेरे में करवटें बदलती हुई जमीला को आज याद आ रहा था कि कैसे वो परेशान थी उस दिन जब सना का फोन आया तो उसने कहा कि ड्रेस 3 लाख की है, आप कहें तो वो ले लें। ये सुनकर जमीला को तो पसीने ही आ गए थे। 3 लाख की ड्रेस? अम्मी आप व्हाट्सएप खोलो और देख लो। लेकिन वो बेचारी मना भी कैसे करती। उस वक्त उसकी होने वाली बहू अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ बुटीक में खड़ी थी। वो कैसे आपको उनके सामने नीचे कर सकती थी। जमीला ने कहा कि मैं देख कर क्या करूंगी, जो पसंद हो ले लो। शुक्रिया अम्मी। ये कहते हुए सना ने फोन रख दिया और जमीला का मूड खराब हो गया था। शाम को जब रशीद साहब आए तो उसका चेहरा ही साहब बता रहा था। पता चलने पर उन्होंने जमीला को समझाया था, दिल छोटा ना करो, शादी का मौका है, पैसे तो आने जाने की बात है। क्या हम अपनी बहू को इसकी पसंद की ड्रेस नहीं दिलवा सकते? हमें भी तो कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन ये फजूल खर्ची नहीं है, और भी तो खर्चे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब खुशी खुशी हो जाने दो। और आज मंगनी के दिन सना उस ड्रेस में तैयार होकर आई तो सब देखते रह गए। मॉडर्न डिजाइन लहंगा, वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। सब रस्में हुई थी। सना के माँ बाप ने इतने तोहफे दिए थे कि जमीला समेटते समेटते थक गई थी। जमीला को एक सेट दिया था और उसे वो लेकर अजीब लग रही थी। वो तो इतने दिनों से कोई खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। बहू की अमीरी का डर उसके दिल में बुरी तरह बैठ गया था। जो लड़की अपने घर में किचन में पैर नहीं रखती थी, जिसके एक बार कहने पर माँ बाप ने ये रिश्ता करके लाखों रुपए आज मंगनी में खर्च दिए थे, इतने लाड प्यार में पली लड़की कैसे 4 कमरे में इस फ्लैट में हमारे साथ रहेगी। वो तो किचन के सारे काम अपने आप करती है, और अगर किसी दिन जमीला के घर काम वाली ना आती तो झाड़ू पोछा खाना भी खुद वो बनाती थी। अब अमीर बहू आएगी तो क्या होगा? वो बैठी रहेगी और वो सारा काम करती रहेगी। ये भी तो सही नहीं होगा। फिर क्या होगा? उसे गुस्सा आएगा, घर में लड़ाई होगी, रशीद अहमद तो काम पर चले जाएंगे, सना भी तो इंजीनियर है, अभी तो कहते हैं सोचा नहीं है, पता नहीं क्या करेगी। दिल करेगा तो अपने डैड का बिजनेस देखेगी। आज तो वो मंगनी में अपने मिजाज देखती रहेगी। इसके सारे रिश्तेदारों को सना बहुत पसंद है। अब तक अहमद भी आ चुका था। कितने ही ख्यालों में डूबते उतरते उसकी आंख लग गई थी। अगले दिन से रोज के काम शुरू हो गए थे। साथ साथ शादी की तैयारियां भी। सना अक्सर सास से मिलने आ जाती। जमीला को अच्छा लगता उसका आना। वो आकर अपनी शॉपिंग के बारे में बताती रहती कि पापा ने एक अच्छा होटल शादी के लिए बुक करवा दिया है। एक दिन वो एतवार को अपनी सास से मिलने आई हुई थी तो कहने लगी, आपको तो पता है अम्मी, मेरी मम्मी मुझे बार बार किचन में कुछ काम सीखने के लिए कह रही है। मैं किचन में जाती हूँ फिर फौरन निकल आती हूँ, क्या करूँ। वहीं बैठे रशीद साहब हंस पड़े। अहमद कहने लगा, माँ आपका क्या होगा, इसके बस का तो कोई काम नहीं है। जमीला दिल मार कर मुस्कुराती। दिल में गुस्सा तो तीनों पर आया। कुछ दिन बाद सना अहमद की दुल्हन बनकर घर आ गई। जमीला और रशीद साहब के सारे रिश्तेदारों पड़ोसियों को सना के बाप ने इतने भारी लिफाफे पकड़ाए कि रिश्तेदार तो कह रहे थे कि ये राजकुमारी कहाँ से आ रही है। जमीला तुम नखरे उठाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सब मेहमान एक एक करके चले गए। जमीला एक एक चीज सना को दिखा रही थी। हर चीज एक से एक महंगी ब्रांड की थी। अचानक सना ने जमीले के गले में बाहें डालकर कहा, मम्मा आपने मुझे जो भी चीज दी है मुझे वो सब अच्छी लगी। शुक्रिया मामा। जमीला हंस पड़ी। उसके भोले से चेहरे पर छाई चमक रही थी। रशीद ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अहमद काफी देर में सोकर उठा था। एक दिन रशीद साहब कहने लगे, जमीला बच्चों को मत उठाना, इनकी जिंदगी का ये अनमोल वक्त है, फिर तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर पूछा, बच्चों का हनीमून पर जाने का क्या प्रोग्राम है? सना की वालिदैन शायद इन्हें अमेरिका भेजने की बात कर रही थी। पैसा है, जहाँ चाहे भेजे बेटी को। आज दिन में मैं पता करती हूँ कि क्या प्रोग्राम है। 10 बजे के आसपास अहमद और सना उठे। उसने गुड मॉर्निंग मम्मा कहते हुए सास को सलाम किया तो जमीला को बहुत अच्छा लगा। फिर सना ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, मम्मा मैं नहा कर आती हूँ, नाश्ते में क्या है, बड़ी भूख लगी है। पीछे से अहमद की आवाज आई, मम्मा मम्मा छोड़ो, नहाकर माँ के साथ किचन में देखो कि नाश्ते में क्या है। लेकिन अपनी नई नई बहू का मम्मा मम्मा करना जमीला को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि एक बेटी है घर में जिस पर उसका दिल उसके लिए सब कुछ करने पर तैयार था। बेटी पाने की तो ख्वाहिश मन में ही थी, जो अब बहू के मुंह से मामा मामा सुनने पर पूरी होती हुई लग रही थी। जमीला ने बहू बेटे को प्यार से नाश्ता करवाते हुए पूछा, बेटा कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है क्या? जवाब अहमद ने दिया,
मम्मा अब भी आपके साथ टाइम गुजारेंगे, कुछ दिन बाद शायद कहीं जाएंगे तो जाएं। इतने में काम वाले भी आ गए। जमीला घर की सफाई करवाने लगी। अहमद ने सना को माँ का हाथ बटाने का इशारा किया, जिसे जमीला ने देख लिया। वो कहने लगी, रहने दो बेटा, मैं सब ही कर लूंगी। सना बोली, ए लियो मम्मा। जमीला को हंसी आ गई। कितने शरारती है ये लड़की, जो दिल में आता है बोल देती है। इतने में सना ने अपनी माँ को फोन मिला दिया और सास की तारीफियों के पाल बांध दिए थे। मई का महीना था। इस महीने में काम वाली छुट्टी लेकर गाँव चली गई थी। उनकी जगह थोड़े दिन काम करने के लिए दूसरी काम वाली तैयार नहीं होती थी। जमीला परेशान हो गई। रशीद भी बोले, दूसरी काम वाली ढूंढ लेते हैं। जमीला ने कहा, कहाँ मिलती है आजकल, एक तो घर में सामान सेट नहीं हो पाता, कैसे करूंगी ये सब। रशीद बोला, अब तो तुम्हारी बहू भी है, हाथ बटाने के लिए देख नहीं रही हो। उसे एक हफ्ते से मम्मा मम्मा सारा दिन करती रहती है, लेकिन काम के वक्त या तो सो जाती है या मोबाइल पर चिपकी रहती है या फिर अपनी मम्मी से मिलने चली जाती है। और उसे तो कोई काम मुझसे कहा भी नहीं जाता। अपने घर में उसे कोई काम नहीं करना पड़ा, अब कैसे उसे इतनी जल्दी किचन में ले आऊं। काम वाली गाँव चली गई। उसके 2 दिन बाद जमीला जिसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो वो बुरी तरह फिसल गई और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। रशीद ऑफिस जा चुके थे। अहमद घर पर था। उसी वक्त माँ को डॉक्टर के पास ले गया। सना घर पर ही रुकी। सास को दर्द में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने जमीला को बेड रेस्ट बता दिया तो पहले से दर्द में परेशान जमीला और परेशान हो गई थी। काम वाली भी छुट्टी पर थी। क्या होगा जमीला। घर पहुंची सना तो अपने सास के गले में बाजू डालकर बोली, मम्मा आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। ये सुनकर अहमद हंसते हुए बोला, तुम तो रहने दो। सना ने उसे घूरते हुए कहा, मम्मा आप बस आराम करो, मैं सब देख लूंगी। जमीला को इस दर्द में भी दिल ही दिल में हंसी आ गई। सोचा उसे कुछ और आता हो या ना आता हो, अच्छी बातें करने तो आती है। सना ने सास को बेड पर लेटाया और कहा, आप लेटो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ, फिर आप दवाई लेना। अहमद ने कहा, लेट जाओ माँ, इसके बनाए हुए नाश्ते के लिए आप अपने आप को तैयार कर लो और चुप रहो। अहमद कहते हुए सना किचन में चली गई। थोड़ी देर में बड़ी अच्छी से ट्रे आ गई। सना नाश्ता लाई और कहा, मम्मा ये लीजिए नाश्ता। जमीला बड़ी मुश्किल से उठ बैठी, ट्रे पर नजर डाली, वहीं अपने पास बैठे बेटे से नजर मिलाई तो वो दिल खोलकर हंसा। लो माँ, अपनी बहू का पहली बार बनाया नाश्ता करो। एक कप चाय और एक कप प्लेट में मैगी देखकर जमीला मुस्कुराते हुए बोली, मैगी तुम्हें आती है बनानी? सना ने बताया, वो मम्मा वो रात को कभी कभी मैं मैगी बनाकर खाती थी। अहमद ने उसे छेड़ते हुए कहा, माँ किसी बहू ने अपनी सास को पहली बार मैगी खिलाई होगी। जमीला ने प्यार से बेटे को डांटा। तुम चुप रहो। ये कहकर जमीला ने अपने पर्स से 2000 रुपए का नोट निकालकर सना के हाथ में रख दिए और उसको ढेर सारा प्यार दिया और वो मैगी खाने लगी। अहमद ने अपने वालिद को फोन पर बताया था। माँ को दवाई खिलाते हुए अहमद ने कहा, आप लेट जाओ। उसने कहा, ठीक है बेटा लेट जाती हूँ, पर एक काम करो, पड़ोस में से उनकी काम वाली के बारे में पूछो, किसी को तो काम के लिए बुलाना ही होगा। मैं ठीक होती तो किसी तरह का काम तो कर ही लेती, काम वाले के बिना अभी तो हिलने में भी दर्द है। नहीं मामा मैं कर लूंगी। जमीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसी है ये लड़की, कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, कुछ आता भी नहीं होगा, मगर हमेशा यही बात बोलती कि मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। क्या सोचेगी इसके माँ बाप, कैसा ससुराल है इनकी राजकुमारी जैसी बेटी का। अहमद ने कहा, मैं टिफिन सर्विस वाले को फोन कर देता हूँ, सुबह टिफिन आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। तुम तो कह रहे थे कि मामा को बाहर के खाने से एलर्जी हो जाती है। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। सना बोली, मामा बस आप लेटे लेटे मुझे बता देना कि कैसे करना है। फिर शायद दवाई से जमीला की गहरी आंख लग गई। दोपहर को सना ने उठाया, मम्मा खाना तैयार है। जमीला ने चौंक कर आंखें खोली, अरे मैं तो बहुत गहरी नींद में सो गई थी, आज दर्द कुछ कम हुआ? मम्मा नहीं बेटा अभी भी है। उसने सहारा देकर सास को बिठाया। अहमद भी वहीं पलट कर आ गया और तीनों का खाना लगा कर दिया। टेढ़े मेढ़े मोटे मोटे पराठे और आलू की सब्जी, जिसे देखकर जमीला का दिल और उसकी आंखें भर आई थी। बेचारी नाजुक सी लड़की कैसे घर को संभालने की कोशिश में लगी थी। सुबह से अहमद ने माँ की भीगी आंखें देखकर मामा के दिल को समझ गया। तीनों ने खाना खाया। जमीला ने सना को उसकी मेहनत के लिए बहुत दुआएं दी। शाम को रशीद भी जल्दी आ गए। बेबी ने उन्हें दिन भर के हाल बताए तो वो मुस्कुरा दिए थे। सना रशीद के लिए चाय लाई तो वो भी खुशी खुशी उसको 2000 देने लगे और उन्होंने कहा, बेटा पहली बार अपनी बहू के हाथ का खाना खा रहा हूँ, सुखी रहो। आज अपने ऊपर बहुत फख्र हो रहा
था। ना चाहते हुए वो बोली, पापा मैंने तो डिनर का भी सोच लिया था। रशीद बोले, क्या बनाओगी बेटा? बिरयानी। मम्मा लेटे लेटे बता देंगी। अहमद ने बताया था कि इन्हें दाल बनानी आती है और रोटी में ट्रे कर लूंगी। सभी इसकी प्लानिंग पर जोर से हंस पड़े। रशीद कहने लगा, वाह बेटा, बहू ने तो हमारे घर में रौनक ही लगा दी, सबको काम पर लगा दिया। तीनों ने मिलकर खाना बनाया और बेड पर ही सब अपनी अपनी प्लेट रखकर चले गए। सब ने खाना साथ बैठकर खाया था। रशीद जमीला की नजरें मिली। दोनों को लगा इन टेढ़ी मेढ़ी रोटियां का जायका कभी भूलने वाला नहीं था। दोनों के दिल में अपनी बहू के लिए मोहब्बत जाग गई। सना ने कहा, अहमद आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। आप और पापा कल से लंच कैंटीन में ही कर लेना, क्योंकि मेरी बनाई रोटी तो टिफिन में चलेगी ही नहीं। वो यह कर खुद ही हंस पड़ी। फिर बोली, मैं और मम्मा कुछ भी खा लेंगे, पर डिनर सब साथ मिलकर करेंगे। आप और पापा शाम को जल्दी घर आ जाना मेरी मदद के लिए। सब बहुत जोर से हंसे। जमीला को उसका साफ साफ बात करना अब रोज का यही मामूल बन गया था। अपने हाथों से घर का हर काम हंसी खुशी संभालती रही। जमीला को कुछ आराम हुआ तो वो भी चलती फिरती हल्के फुल्के काम निभाती रही। 10 दिन बीत चुके थे। एक सुबह जमीला की आंख बहुत जल्दी खुल गई। वो फ्रेश होकर किचन में गई तो किचन की खटपट सुनकर सना अपने कमरे से आंखें मिलती हुई आई और जमीला का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाकर बोली, नहीं मम्मा, अभी आपको कुछ नहीं करेंगे, मैं फ्रेश होकर आपके लिए चाय लाती हूँ। ये सुनकर जमीला की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, बेशक किसी की भी माँ बाप हो, अपने से ज्यादा अमीर घर में रिश्ता करने पर सोच में पड़ ही जाती हैं। हर अमीर घर की बेटी बुरी नहीं होती। ये सना ने साबित कर दिया। आप इस कहानी के मुताल्लिक कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।